Hello, my dear student. Very precious good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel, Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. Myself, Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Subra Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. In previous lectures, I have told you detail about the exchange of gases in the respiratory systems. How the oxygen as well as carbon dioxide, both the gases transport or exchange in our respiratory systems or lungs is totally dependent on the partial pressure of the gases as well as solubility of the gases and thickness of the membrane where exchange takes place. But today, now we are going to discuss the transport of oxygens as well as carbon dioxide. The first of all discuss transport of oxygen. It is also known as oxygen dissociation curve. Here curve or graph plotting mentioned in here. I will discuss detail one by one. The first of all transport of oxygen. As you know that जैसा हम जानते हैं कि इन द ब्लड्स में क्या होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर फाउंड दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज व्हाट? हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ respiratory pigment. is a type of respiratory pigments. It important role for क्या करता है? बाइंडिंग टू ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ट्रांसपोर्ट दिस गैसेज थ्रू आउट दी बॉडी. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. तो हीमोग्लोबिन इज व्हाट? इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज द आयरन कंपाउंड्स. ये आयरन कंपाउंड्स होते हैं एंड आयरन कंपाउंड बाइंड विथ ऑक्सीजन्स, बाइंड विथ ऑक्सीजन विथ O2, bind with O2 to form HbO2, that is known as oxyhemoglobin. This oxyhemoglobin, actually this process is a type of reversible process. It is a type of reversible process. Why it is called and a reversible process? Because hemoglobin have a binding capacity of both the gases oxygen as well as carbon dioxide. The binding of these gases is totally dependent on the partial pressure of the gases. If the partial pressure of oxygen is more than the carbon dioxide in the bloods, at this time hemoglobins bind with O2 to form oxyhemoglobins. In oxygenated bloods कि अगर हम बात करेंगे तो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म. बट इन केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स वहां पर क्या होगा? यहां पर क्या है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई. यह हाई होगा इन कंपेरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड. बट इन केस ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स में क्या होगा? द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई. यह हाई होगा. तो एट दिस टाइम जब ये हाई हो रहा है तो ये क्या करेगा? दिस CO2 बाइंड विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. आई विल डिस्कस डिटेल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स. वहां पर हम बात करेंगे डिटेल में. बट आपको इस चीजों को समझाने के लिए मैंने आपको यहां बताया कि hemoglobin bind with oxygen as well as carbon dioxide is totally dependent on the partial pressure of the gases of carbon dioxide or oxygen molecule. If
एनी ब्लड्स, अगर ब्लड्स में आप देखें द ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई इन कंपैरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, so therefore in this condition hemoglobin bind with oxygen molecule to form oxyhemoglobin, oxyhemoglobin से ई में कन्वर्ट हो जाता है. बट when the concentration of oxygen or partial pressure of oxygen is low, at this time oxyhemoglobins are dissociated in the form of hemoglobin plus O2. After that this hemoglobin bind with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin. Next, तो 1 gram each hemoglobin carries 4 molecules of O2, 4 molecules of O2. ध्यान देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि each hemoglobins carry 4 molecules of ऑक्सीजन molecules, ये ऑक्सीजन को वह कैरी करता है. क्लियर? एनी डाउट्स? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय RBCs वाली जो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय blood plasma. This is the another important characteristics of the oxygens. आप ये देखो कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी थ्रू RBC, because RBC is what? RBC is a type of non-nucleated cell. It contains the respiratory pigments that is known as hemoglobin, and the hemoglobin bind with oxygen to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन्स के रूप में वह कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर दैट दिस ऑक्सीहीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, थ्रू सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू वह सप्लाई हो जाता है. ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा में होता है, क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा. तो ब्लड सेल्स में ओनली 1 सेल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज नोन एज RBC. ये आपको RBC में होता है. एज वेल एज इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, अगर हम देखा जाए इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अगर हम बात करते हैं 20 ml O2 carry 100 ml of blood. 20 ml O2 carry 100 ml of blood. ये ध्यान देने की बात होती है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बार बार ये निकल कर आती है. ठीक है? तो हियर इज द सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एज वेल एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. हमने पहले भी बताया कि ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन्स होती है, एंड द ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस लाइक ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. इफ एनी ब्लड्स हैविंग मोर ऑक्सीजन, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है इन कंपेरिजन टू द कार्बन डाइऑक्साइड, इन दिस कंडीशन हीमोग्लोबिन्स बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन में होता है. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द कार्बन डाइऑक्साइड, एट दिस टाइम ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट विथ ईच अदर, वह अलग हो जाती है. क्लियर? ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट जो अलग हो जाती है. आफ्टर दैट दिस हीमोग्लोबिन बाइंड विथ
carbon dioxide to form carbaminoamine. And here is the some graph plotting. They are belonging to the oxygen transport or oxygen dissociation curve. The first graph that is known as Boer effect. Boer is a type of scientist. उन्होंने इफेक्ट बताया और वो क्या इफेक्ट उन्होंने बताया कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन पर उन्होंने बात किया था। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन बाय वन अभी हम बात करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर, हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हियर द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इफ इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर, अगर आप बढ़ रहा है तो ये आपको नॉर्मल आर्टेरियल्स, ये आपको ग्राफ प्लॉटिंग दे रहा है, दैट इज नोन एज सिग्मोइडल कर्व। ये कैसा दिख रहा है? सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व्स, ये जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है, ये आपने देखा कि सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन्स अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर ये ग्राफ प्लॉटिंग दिखा रहा है। इफ इनिशियली में जब इसको हम इसके पार्शियल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजेज द सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आप ये देखो, जब ये पार्शियल प्रेशर इसका 100 हो जाता है तो नियर अबाउट आप देख सकते हो कि ये 97 to 98% हीमोग्लोबिन्स आर सैचुरेटेड, नॉट 100%। ये सैचुरेटेड नहीं होता है। ये डिपेंड्स अपॉन कब करता है? व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द बॉडी इज 40 mmHg एज वेल एज ऑक्सीजन का जो लेवल होगा 195 mmHg। एट दिस टाइम आप देख रहे हो 95 या 100 m। तो एट दिस कंडीशन द सैचुरेशन हम आप हीमोग्लोबिन नियर अबाउट 97%, आप 98% यहां पर हमने वो मेंशन किया। हियर द नॉर्मल ग्राफ प्लॉटिंग एंड दिस ग्राफ प्लॉटिंग इज नोन एज सिग्मोइडल कर्व। इसको कैसा कर्व बोलते हैं? सिग्मोइडल कर्व। ये सिग्मोइडल कर्व है। तो यहां पर भी आपने सिग्मोइडल कर्व की बात वहीं कहा। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू से, अगर वह ज्यादा 80 mmHg हो रहा था, एट दिस टाइम यहां पर pH आप देख सो 7.4 होगा। अगर उसके कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से इंक्रीज करते हैं तो pH वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज डिक्रीज, बिकॉज रिलीजेज मोर हाइड्रोजन आयंस के कारण से उसका pH डाउन होगा, फॉल डाउन, और ये 7.2 के आसपास हो जाता है। एट दिस टाइम आप देख सकते हो ये जो ग्राफ प्लॉटिंग होती है शिफ्टेड टू, आपको किधर शिफ्ट होती है? टू लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। इट मीन सैचुरेशन इज लेसर। ये लेसर हो गया। 98 जो 98% था, ये आपको 90 के आसपास चला गया। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बिलो और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल वैल्यू से, अगर वो यहां पर आपका क्या हो गया? ये 40 था, उससे भी कम हो गया 20 mmHg। एट दिस टाइम द pH आर इंक्रीजेज, वो इंक्रीज करेगा बिकॉज रिलीजेज मोर हाइड्रोक्सिल आयन इन कंपेरिजन टू द H+ आयंस। एट दिस टाइम्स आप देखोगे मोर सेचुरेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ईयर। आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉट O2, हियर इज द CO2 इज 20 mmHg। एट दिस कंडीशन में क्या होगा? सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज मोर। तो इट मीन्स, ये कहने का मेरा ये मतलब यही था कि saturation of hemoglobin with oxygen molecule is totally dependent on the partial pressure of the oxygen molecule. If the partial pressure of oxygen is higher in comparison to the carbon dioxide, at this time more saturation takes place. If the concentration of or the partial pressure of the oxygen molecule is lower than the carbon dioxide, the saturation of hemoglobin is lesser. वो आपको लेसर हो रहा है। यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पर 40 पार्शियल प्रेशर्स पर O2 के आपका 70% सेचुरेशन आपको दिखा रहा है, 80 पर 95 आपको है, फिर 100 पर वो नियर अबाउट 98% सेचुरेशन टेक्स प्लेस of hemoglobin with oxygen molecule. तो HbA is the very important hemoglobin bind with oxygen molecule to form oxyhemoglobin में वो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? द फैक्टर्स, कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं अफेक्ट
affect the oxygen dissociation curves? Factor affect transport of O2, transport of O2 or oxygen dissociation curve or curve. Three important factors, they are directly affect the oxygen dissociation curve or transport of oxygen. First is the partial pressure, partial pressure of carbon dioxide. Second, pH. pH means concentration of hydrogen ion, concentration of H plus ions. And third is the temperature. This is the three important factors that affect the oxygen dissociation curve. The first of all, discuss partial pressure of carbon dioxide. यहाँ से ही आप क्लियर हो सकता है, इजिली आप समझ सकते हो. इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, अगर वह ज़्यादा हो रहा है, द सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज लोअर देन द नॉर्मल. ये नॉर्मल से वो कम हो गया. क्लियर? इफ द पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन इज लोअर देन द नॉर्मल वैल्यू, अगर वह डिक्रीज हो रही है, एट दिस टाइम saturation of hemoglobin with oxygen molecules is higher, मैक्सिमम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है. आप ये शिफ्ट हो रहा है. अगर वह ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स अगर वह इंक्रीज कर रही है, द ग्राफ जो होता है वह शिफ्टेड टू द लेफ्ट साइड, वो लेफ्ट साइड होता है. इफ डिक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो डिक्रीज कर रही है, द ग्राफ शिफ्टेड टू द राइट साइड, वो शिफ्ट कर रही है. तो ये जो ग्राफ की जो शिफ्टिंग है अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगेंस्ट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड इज द पीएच और कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. मैंने यहां पर पीएच भी आपको मेंशन किया हुआ है. तो pH is also affect the rate of oxygen dissociation curve. It means अगर if increase the concentration of carbon dioxide बढ़ रहा है, तो therefore क्या हो जाएगा, decrease the pH value. और pH value hemoglobin is a type of protein. ये conjugated protein होती है. In acidic pH पर यह देखा गया है उनकी फंक्शनल एक्टिविटी डाउन होती है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगा, वह सेचुरेशन भी कम होगा. एट लो पीएच पर एबव 7.4 है तो सेचुरेशन क्या हो गया, हाई होगा. इट मीन्स एल्कलाइन पीएच पर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी इज मोर ऑफ हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होगी. आप देख सकते हो. तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ pH of the blood is what, near about 7.4. तो pH is also affect the rate of oxygen dissociation curve. तो लो pH पर saturation लो हुआ, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन का saturation अगेंस्ट वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई पर ज़्यादा हो जाता है, और ये नॉर्मल वैल्यू पर आपको ये दिख रहा है. एंड थर्ड इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर इज नॉट मेंशन हियर, बट इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हो तो सेल नीडेड मोर एनर्जी, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इफ़ इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप इफ़ इंक्रीजेज द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सेल वांट मोर एनर्जी, और मोर एनर्जी, और एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलीज्ड इनसाइड सेल बाय O2.
ये O2 के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स इफ इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये ध्यान हमेशा देखना कि आपको ये जो ग्राफ होगा शिफ्टेड टू द राइट साइड, इट मीन्स मोर सैचुरेशन, वहाँ पर मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड विथ हीमोग्लोबिन के साथ वह बाइंड कर जाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर डायरेक्टली अफेक्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये बहुत ही एक सिंपल था कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमने यहाँ पर अच्छे से डिटेल में मेंशन आपको किया। आपको यही बताया कि हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होता है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड। It is very important role to carry the oxygen molecule throughout the body, को कैरी करता है और इन द फॉर्म ऑफ HbO2 के फॉर्म में। बट दिस प्रोसेस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस एंड HbO2 ये फिक्स नहीं हो जाता है, स्टेबल नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 पर यह डिपेंड करता है। इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर वह इंक्रीज कर देती है तो वहाँ पर क्या होती है, HbO2 आर डिसोसिएट्स हो जाते हैं, Hb देन बाइंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो आई विल डिस्कस डिटेल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स में, वो हम बात करेंगे। ये तो नेक्स्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। The carbon dioxide is a type of noxious gases. They are very dangerous gases. They are released from our body, हमारे बॉडी से रिलीज, आउटसाइड ऑफ द बॉडीज रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। द कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड, और ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है? ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट CO2 को वो ट्रांसपोर्ट करती है। इन आवर बॉडी, अगर बॉडी के अंदर जाया जाए तो 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्टेड बाय hemoglobin by RBCs, hemoglobin in the form of HbCO2, carbamino hemoglobin, hemoglobin in the form of carbamino hemoglobins। 75% carbon dioxide transported, 75% carbon dioxide transported in the form of bicarbonate ion, bicarbonate ions, 7% CO2 transported by blood plasma, तो आप यहां पर देख सकते हो। इन केस ऑफ ऑक्सीजन हमने डिस्कस किया था कि 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ RBC, बट इन हियर आप देख रहे हो कि डिफरेंसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। 20 to 25%, वही बहुत ही लिटिल, नॉट मैक्सिमम, वहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू RBC, ये हीमोग्लोबिन्स उसके अंदर होती है, बट द हीमोग्लोबिन्स ओनली ट्रांसपोर्ट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर बॉडी। मैक्सिमम अमाउंट
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। वो कैसे होगा, वो क्या होगा, अभी हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड द 7% ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा, वहाँ पर क्या था 3% ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड प्लाज्मा। क्लियर। ये भी ध्यान देना कि यह जो फॉर्मेशन ऑफ HbO2, यहां पर भी वही होगा, फॉर्मेशन ऑफ HbCO2 इज रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये डिपेंड करता है। अब मैं कंडीशन पे बात करता हूं कि क्या क्या कंडीशन में क्या हो सकते हैं। इन टिश्यू रीजन्स, अगर हम देखा जाए इन टिश्यू रीजन्स में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज लो, यहां पर लो होगा। एट दिस कंडीशन में आप क्या हो देख सकते हो, एंड यहां पर कि ये जो हो गए ये मूव करेंगे फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। इन ईयर आप ये देखिए इज द सेल्स आर टिश्यू, इन ईयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर, ऑक्सीजन इज लेस। एट दिस टाइम दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज, कैपिलरीज में वह ट्रांसफर हो रही है। जैसे ही जाती है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इनसाइड द ऑर्बिसीज के अंदर आ रही है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ H2O as well as hemoglobins, because inside the RBC water and hemoglobin both are present, दोनों प्रेजेंट्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब यहां पर देखो कि CO2 प्लस H2O ये दोनों कंबाइंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, हियर इज व्हाट दैट इज नोन एज कार्बोनिक एसिड with the help of enzymes carbonic anhydrase. This is a very important enzymes present inside the RBCs, enzymes present in the RBCs that is known as carbonic anhydrase enzyme and hydrase enzyme and these enzymes प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिसीज एज वेल एज लंग्स, ये दोनों जगह पर होते हैं। तो एंजाइम्स प्रेजेंट इन ऑर्बिसीज एंड लंग्स, दोनों जगहों पर ये एंजाइम्स पाई जाती हैं। और ये मैंने क्या बताया कि 75% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने में, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने में प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हो कि अनदर मैंने क्या बोला कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन CO2 बाइंड विथ Hb to form HbCO2 that is known as कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आफ्टर दैट दे डिसोसिएट, दे आर हीमोग्लोबिन्स के साथ ये क्या होता है, पोटेशियम्स आर आल्सो बाइंड दैट इज नोन एज पोटेशियम हीमोग्लोबिनेट, दिस इज देयर सॉल्ट। Hb मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स एंड देयर सॉल्ट, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ब्लड के अंदर बफरिंग मैकेनिज्म होता है जो ब्लड के pH को ऑलवेज कांस्टेंट रखता है ड्यू टू Hb एंड KHb के कारण होती है। आफ्टर दैट यहां पर देखो कि कार्बोनिक एसिड अगेन डिसोसिएटेड इनटू 2 H plus and bicarbonate ions, and this bicarbonate ions released out or transport outside of the RBC inside the plasma। जैसे ही वो बाहर आता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, देखो यहां पर मेंटेन द आयनिक इक्विलिब्रियम, ये क्योंकि माइनस चार्ज जब बाहर आएगा उसी माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस शिफ्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, हियर इज द ब्लड प्लाज्मा, ये प्लाज्मा रीजन्स होगा, shifted from plasma to inside the RBC, and this phenomena is known as chloride shift to maintain the electrical neutrality or balance ionic equilibrium due to chloride shift। वो chloride shift है, chloride क्या है, NaCl they are present in the blood plasma, they are easily dissociate with each other, ये डिसोसिएट हो जाती है एंड जब डिसोसिएट हो जाएगा Na अलग रह जाएगा, वो कभी भी एंट्री नहीं कर पाता इनसाइड देम, क्योंकि प्लस चार्ज इसके अंदर नहीं जा पाता, इसकी मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं दे, ओनली द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस मूव इनसाइड द
RBC to maintain the ionic balance that is known as chloride shift. अब ये जो बाहर आया, जो बाइकार्बोन आयन रिएक्ट विथ Na टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या बना लिया? सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. ये मैंने क्या कहा कि ये जो है ये आपको 75% सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में ये ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. व्हेन रीचेज इनटू लंग्स, जैसे ही लंग्स में जाता है, ध्यान देना कि जैसे ही, अगर आप ये ध्यान देना, इन द टिश्यू रीजन्स में ये कंडीशन यह होता है. इन द लंग्स, सेकेंड इन द लंग्स रीजन, इन द लंग्स, यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई. ये हाई होगा. अब वहां पर आ रहा है, जो किस फॉर्म में आ रहा है? H2CO3. ये यहां पर ब्लड के थ्रू लंग्स रीजन में आया. एंड दिस H2CO3 ये क्या होंगे? डिसोसिएट होंगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस. कार्बोनिक एनहाइड्रेस then converted into carbon dioxide plus H2O, and this carbon dioxide are expelled out from the lungs, expelled out of the body, expelled out from the body through lungs. तो आप यहां पर देखा कि ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है. मैंने क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेरी डेंजरस गैस इन आवर बॉडी. अगर ये ज्यादा हो जाएगा कि ऑल द ब्लड क्या किसमें कन्वर्ट करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वाया ब्लड के थ्रू होते हुए लंग्स में जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, एंड दिस कार्बोनिक एसिड ये डिसोसिएट हो जाती है in the form of CO2 and H2O, as well as ये जो था HB CO2 is also dissociated, ये हो जाएंगी in the lungs region HB plus carbon dioxide, and this HB again in the lungs region bind with oxygen molecule to form HbO2 that is known as ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है. हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड एज वेल एज टिश्यू में कैसे हुआ. आपने देखा कि टिश्यू के अंदर और सेल के अंदर CO2 का लेवल ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द oxygen molecules. Therefore, this carbon dioxide transfer from cell to tissue capillaries. Inside the capillaries, RBCs are present in where a special type of enzymes are present that is known as carbonic anhydrase. With the help of carbonic anhydrase, CO2 combined with H2O to form carbonic acid. Carbonic acids are again dissociate H plus and bicarbonate ion, and this bicarbonate ion transfer to blood plasma region. Same time, at this time, chloride ion shifted from plasma to inside the RBC. This phenomena is known as chloride shift to maintain the ionic equilibrium inside the RBC. As well as आप देखो CO2 bind with hemoglobin to form कार्बाहेमोग्लोबिन के रूप में वो हो जाती है. KHB is also present inside the RBC, that is potassium hemoglobinates. They are dissociate K plus and this HB react with H plus ion to form HHB. तो inside the RBC में भी buffering system takes place. Therefore क्या होता है? The pH of the blood is always constant. So here is the transport of carbon dioxide in our body. In our body, in 100 ml, in deoxygenated blood, 4 ml
of carbon dioxide transported in 100 ml of blood, 100 ml of blood. बट वहाँ पर आपने क्या देखा था, इन केस ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml of blood carry 20 ml of oxygen molecule, but in here 100 ml of blood only carry 4 ml of carbon dioxide. So here is the transport of carbon dioxide is totally finished. So transport of oxygen as well as transport of carbon dioxide is very important for examination point of view as well as competition point of view. So everyone's watch very seriously. These topics are very important. ये बहुत ही important ये topics आपको है. तो thank you for watching this video. Have a nice day all of you.